राह में मुश्किल होगी हजार, तुम तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके। दूर है मंजिल लेकिन इतना भी नहीं कि तू करना पड़े। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। Respected dignitaries and all the virtual audience, I'm really happy to welcome you all to this auspicious occasion. I would like to invite Dr. Anuradha Maitan, the faculty in charge of NITA Literary Club, for the welcome speech. Ma'am, please. नमस्कार, स्वागतम, अभिनंदन। मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। I, on behalf of NITA Literary Club, would like to extend my heartfelt deepest gratitude to our special guest today for sparing their valuable time with us. Anup ji, Sardula ji, Dr. Manish ji, NIT अगरतला का हिंदी ऑफिसर है और वो मैं कोशिश करूंगी हिंदी में बोलने के लिए। विश्व सम्मानवाचक विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस का ये ग्लोबल कोऑर्डिनेटर हिंदी वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरी भी है, और प्रशांत जी, कन्वेनर ऑफ राष्ट्रीय भाषा कमिटी NIT अगरतला, my dear students and all the other faculties and student participants which are connected from the various parts of the country, आप सभी का स्वागत है। पहले मैं कुछ लाइन मैंने YouTube से ढूंढ के रखा है। अनूप जी और सरजुला जी का कुछ लाइन मैं थोड़ा पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। मुझे उतना नहीं आता, अगर मिस्टेक हो गया तो थोड़ा माफ कीजिएगा। अनूप जी ने एक इंटरनेशनल कवि सम्मेलन विज्ञान भवन न्यू दिल्ली 11 जनवरी 2021 में ये कुछ लाइनें बताई थी जो मुझे बहुत पसंद आई। मैं बोलती हूँ। जज्बातों की उठती आंधी, हम किसको दोषी ठहराते, लम्हे भर का कर्ज लिया था, सदियां बीत गई लौटाते। दिस इज आवर अनूप जी टुडे एंड सरदुला जी का कुछ लाइन है, और अगर मिस्टेक हुआ तो प्लीज माफ कीजिएगा, पर मुझे ये बहुत पसंद है। लिख रही तू गीत लड़की, लिख रही तू गीत लड़की, ले कलम में स्मेध भर ले, छोड़ तू भाषा नयन की, कर्म का उल्लेख कर ले। With this, I will request Rahina to kindly introduce our special guest today. Abhinandan, Swagatam. Thank you, ma'am. Our first guest, Mr. Anup Bhargavaji. He has been promoting Hindi outside India nearly the last 2 decades and had been honored with various awards like Hindi Vinesh Prasad Samman by UP Hindi Sansthan. As a result of his Bachpan Ke Pyar to poetry, he founded one of the most vibrant groups of community of poetry lovers, E-Kavita. He was also associated and positively contributed his many applaudable works in the Kavita Kosh, a platform where the biggest collection of Hindi poems are available and anyone could ever possibly find anywhere. The consistency and dedication G has shown for supporting and promoting Hindi poetry and language as a whole through his whole life is truly admirable. Our next guest, Mrs. Shardula Nagoja ji. Shardula ji is an engineer by profession but loves to contribute her life to works with a strong belief in the amount of power they carry. Her love for her work started when she was into writing poems since her childhood, and she is showing her dynamism from the last 15 years. And now it's a matter of pride that it has been integrated to the revolution for promoting and supporting the Hindi language in the international stage. She is the founder of Kavita Singapore and has been achieved many laurels. Before handovering the platform to Anup ji, I would like to invite Dr. Manish Bhargava sir for a few words. So please. धन्यवाद रियाना, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने दोनों के बारे में बताया, और मुझे बहुत ज्यादा नहीं कहना रियाना, क्योंकि ये समय बड़ा वैल्यूबल समय दोनों ने निकाला है आप लोगों के लिए। मुझे सिर्फ इतना सा कहना था कि मेरे शॉर्ट पीरियड के रिक्वेस्ट पे मानना भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। आदमी इसका
जिसे हम कहना चाहिए व्यक्तित्व, उसी से पता लगता है, और उसकी हम्बलनेस। और क्योंकि मैं अनूप भाई के बारे में तो कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे जन्म से इन्होंने मेरे को देखा है, और जन्म से यहाँ तक आते हुए सफर पूरा आपने मेरे को देखा। शार्दुला जी से मिलना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। और जैसे मैंने कहा कि एनआईटी परिवार, मेरा सेंटेंस इतना सा है कि नीटा परिवार में हमारे इस यूथ के साथ आपका स्वागत है, और इस संबंध बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी के साथ मैं अपना टाइम ज्यादा आप लोगों का नहीं लूंगा, क्योंकि अब मेरे ख्याल से दोनों गणमान्य जो भी हमारे सदस्य वो हैं, उनकी बातों को सुनने में जो मजा है वो शायद मैं नहीं, क्योंकि मैं तो एज ए प्रोफेसर लेक्चर दिन में और हर दिन आप लोगों से मिलता रहता हूं, इसलिए पुनः आप लोगों का एक बार स्वागत। धन्यवाद मनीष, धन्यवाद अनुराधा जी, और धन्यवाद रहीना इतने सुंदर परिचय के लिए। तो मैं सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं, आप सबको, कि आपने हिंदी दिवस के बारे में सोचा। दूसरी बात जो मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि मैं आज के कार्यक्रम के लिए विशेष तैयारी करके नहीं आया हूं, बिल्कुल भी नहीं आया हूं। और ये ऐसा नहीं कि मैं कर नहीं सकता था, बल्कि मैंने ऐसा जानबूझ के किया। और उसका कारण ये है कि जब आप तैयारी करके आते हैं तो आप सिर्फ अपने दिमाग से बोलते हैं, और दिमाग हमारे व्यक्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा है। जब तक उस दिमाग में मन को नहीं मिला दिया जाता, दिल को नहीं मिला दिया जाता, तब तक आप संपूर्ण व्यक्ति नहीं बनते। तो आज मैंने तैयारी इसलिए नहीं की है कि मैं दिल और दिमाग दोनों से बात करना चाहता हूं। और ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी होगी कि पहली बात तो ये कि आप सब लोग, मैं समझ रहा हूं कि या तो आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं या साइंस पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग से संबंधित आप पढ़ रहे हैं। तो इंजीनियरिंग आपके दिमाग की नसों को खोलती है ना, लेकिन वो काफी नहीं है ना। जैसा कि मैंने कहा कि आपको अपने दिल से भी सोचने की जरूरत है। और आज जो हम बात करेंगे वो उसी बारे में बात होगी कि कैसे आप अपनी अभियांत्रिकी, अपनी इंजीनियरिंग जो सीख रहे हैं, उसमें आप कैसे कला या आर्ट का समावेश कर सकते हैं, उसको मिला सकते हैं, है ना। और वो अगर आप कर लेंगे तो आप एक संपूर्ण व्यक्ति बनेंगे, है ना। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि मैं क्योंकि तैयारी करके नहीं आया हूं, तो जो भी मेरे दिमाग में, जिस भी क्रम में मेरे पास ख्याल आएंगे, मैं उनको बोलता जाऊंगा, है ना। तो चलिए, एक बात जो और मैं आपके सामने लाना चाहता हूं कि आजकल का जो युग है वो वैसे भी किसी एक विषय में सिमट के रह जाने का नहीं है। आपने अपने पढ़ाई में भी आपने देखा होगा कि पढ़ाई का भी हर विषय दूसरे विषय से संबंधित है। फिजिक्स को आप केमिस्ट्री से जोड़ सकते हैं, फिजिक्स को आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जोड़ सकते हैं, फिजिक्स को आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जोड़ सकते हैं। तो ये जो क्रॉस सब्जेक्ट इंटरेक्शन है, ये केवल पढ़ाई में ही जरूरी नहीं है, जिंदगी में भी जरूरी है, ये कला में भी जरूरी है। कि जब आप नृत्य की बात करते हैं कला में, या आप कविता की बात करते हैं कला में, या आप संगीत की बात करते हैं कला में, तो संभावना है कि आप इनको भी आपस में जोड़ सके। नृत्य को नाटक से जोड़िए, संगीत को नृत्य से जोड़िए, है ना। तो ये सब संभव है। और अगर आप ये करेंगे तो क्या हो रहा है, देखिए कि
हर कला जो है वो हमारे शरीर की किसी एक इंद्री की तरफ इंगित करती है ना. इट पॉइंट्स टू वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. संगीत है वो हमारे कानों को छूता है, नृत्य है वो हमारी आंखों को छूता है, नाटक है वो हमारे मन को छूने की कोशिश करता है ना. तो जब आप इन कलाओं को आपस में मिलाएंगे तो आप बॉडी की अधिक जिसको कहते हैं इंद्रियों को छुएंगे, है ना. तो अगर आपने जैसे संगीत को और नृत्य को मिलाया तो आपके कान भी प्रभावित हो रहे हैं, आपकी आंखें भी दृश्य देख रही हैं, है ना. तो उसकी भी कोशिश कीजिए. और हम लोगों ने किया इस तरह के कुछ प्रयास, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा. जैसे हम लोगों ने भारत के एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं अशोक चक्रधर, आपने उनका नाम सुना होगा. उनकी बेटी जो है वो भरतनाट्यम करती हैं, है ना. तो हमने उन दोनों को बुलाया एक साथ एक मंच पर और हमने उसको नाम दिया कि नृत्य में कविता और कविता में नृत्य, है ना. तो देखिए दोनों संभव है. नृत्य जो है, भरतनाट्यम नृत्य जो है, अक्सर पुरानी जो हमारे जो पुराने स्क्रिप्चर्स हैं और पुराने जो लिखा गया है अक्सर उस पे किया जाता है भरतनाट्यम, और वो भी दक्षिण भारत का नृत्य है ना. तो दक्षिण भारत की ही जो उसमें जो रचनाएं होती हैं वो अक्सर दक्षिण भारत की भाषाओं में होती हैं. लेकिन हमने एक प्रयास किया कि हिंदी कविता पे क्यों ना भरतनाट्यम किया जाए, है ना. तो वो प्रयास बड़ा सफल रहा. तो आपको थोड़ा सा लीड से हटकर सोचने की जरूरत है हर क्षेत्र में, और अगर आप वो करेंगे तो आपको कुछ ऐसी सफलताएं मिलेंगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, है ना. तो चलिए हम इस पे और बात करेंगे, और मैं आपसे बात करूंगा कि आप विशेष रूप से आप इंजीनियरिंग के विद्यार्थी होने के साथ साथ कैसे अपने आप को हिंदी से जोड़ सकते हैं, कैसे आप अपने आप को कला से जोड़ सकते हैं. तो इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में शार्दुला को सुनेंगे, लेकिन मैं फिर अंत में मैं फिर 5 मिनट के लिए मैं फिर आना चाहूंगा जिसमें कि हम इस बारे में बात करेंगे, है ना. तो चलिए अब 1-2 मिनट मैं लेना चाहूंगा कि कविता मेरा विषय है, कविता मैं बचपन से करता आया हूँ. तो और मैंने भी इंजीनियरिंग की थी बिट्स पिलानी से. तो जैसा मैंने कहा कि जो विषयों को जोड़ने की बात है, तो मैंने और शार्दुला ने भी कुछ प्रयास किए हैं कि हम अपनी कविता में विज्ञान को या अभियांत्रिकी को लेकर आए, है ना. कि कविता का विषय क्यों केवल सिर्फ चांद तारे पेड़ पत्ते प्रेमिका प्रेम क्यों यही क्यों हो सकते हैं, है ना. प्रेम का विषय क्यों नहीं एक आप जानते हैं सर्कल को वृत्त कहते हैं, है ना. वृत्त होता है सर्कल, और उसकी जो परिधि जो है वो सर्कमफेरेंस को परिधि बोलते हैं. तो मैंने कुछ गणित मेरा प्रिय विषय रहा, तो मैंने कुछ कहा कि क्यों ना हम गणित के प्रतीकों से, गणित के बिंबों से क्यों ना हम प्रेम की बात करें, क्यों ना हम कविता की बात करें, है ना. तो मैं आपको 2 छोटी छोटी सी कविताएं मैं आपको देता हूं जिसमें कि मैंने गणित को कविता से जोड़ने की कोशिश की है ना. तो देखिए पहली कविता है, इसमें 2-3 शब्द मैंने बता ही दिए. वृत्त होता है सर्कल, परिधि होती है सर्कमफेरेंस, और केंद्र होता है सेंटर ऑफ द सर्कल. तो इसमें ये 3 शब्द आपको दोनों कविताओं में आपको दिखेंगे. तो देखिए पहली कविता है कि मैंने कई बार कोशिश की है तुमसे दूर जाने की, है ना. बड़ी सीधी सी बात है. मैंने कई बार कोशिश की है तुमसे दूर जाने की, लेकिन मीलों चलने के बाद जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो तुम्हें उतना ही करीब पाता हूं,
है ना। तो देखिए ये तो हुई कविता की बात, लेकिन अब मैं इसको अगर विज्ञान कविता में कह रहा हूं तो इससे मुझे समझाना पड़ेगा कि वो कैसे संभव है ना। तो दूसरी पंक्ति जो है वो उसकी जो आप देखिएगा कि मैंने कई बार कोशिश की है तुमसे दूर जाने की, लेकिन मीलों चलने के बाद जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो तुम्हें उतना ही करीब पाता हूं। तुम्हारे इर्द गिर्द वृत्त की परिधि बन के रह गया हूं मैं, है ना। तो कभी कोशिश करके देखिए वृत्त में चलने की, एक सर्कल में चलने की, और आप केंद्र से उतना ही दूर रहेंगे जितना कि आप शुरू में थे। मीलों चल लीजिए आप, है ना। तो ये थी एक विज्ञान कविता। एक और देखिए, वही मैंने बिंब लिए हैं कि मैं और तुम वृत्त की परिधि के अलग अलग कोनों में बैठे दो बिंदु हैं। इसको अगर स्क्रीन शेयरिंग को अभी बंद कर दें तो शायद बेहतर रहे। हाँ, कि मैं और तुम वृत्त की परिधि के अलग अलग कोनों में बैठे दो बिंदु हैं। मैंने तो अपने हिस्से का अर्धव्यास पूरा कर लिया। अर्धव्यास, रेडियस। कि मैं और तुम वृत्त की परिधि के अलग अलग कोनों में बैठे दो बिंदु हैं। मैंने तो अपने हिस्से का अर्धव्यास पूरा कर लिया। क्या तुम मुझसे मिलने के लिए केंद्र पर आओगी? क्या बात है, वाह। है ना। तो ये देखिए एक और गणित के बिंबों का प्रयोग। और अब एक कविता, जब मैंने गणित की बात हुई है तो एक फिजिक्स की भी बात करते हैं, है ना, भौतिक शास्त्र। तो उसमें मैंने कहा कि हाँ, कि तुम्हारे शब्द मुझ तक पहुंच ही कहां पाते हैं। तुम्हारे शब्द मुझ तक पहुंच ही कहां पाते हैं। अक्सर जमाने की जबरदस्ती ओढ़ाई गई चाशनी में फिसल के लौट जाते हैं, है ना। कई बार हम अपनी बात को जरूरत से ज्यादा मीठा बना देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है ना। तो जब हम ऐसा करते हैं तो जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो अपना अर्थ खो बैठती है। कि तुम्हारे शब्द मुझ तक पहुंच ही कहां पाते हैं। अक्सर जमाने की जबरदस्ती उड़ाई गई चाशनी में फिसल के लौट जाते हैं, है ना। तुम्हारे होठों के गोल होने से शुरू होकर शब्दों के मेरे कान तक पहुंचने का समय एक युग के समान लगता है। जब भी हम कोई बात कहते हैं तो सबसे पहले होठ गोल होते हैं और फिर शब्द कान तक पहुंचते हैं। तो तुम्हारे होठों के गोल होने से शुरू होकर शब्दों के मेरे कान तक पहुंचने का समय एक युग के समान लगता है। किताबों में पढ़ा था कि प्रकाश की गति ध्वनि से तेज हुआ करती है। यस, है ना। आपने फिजिक्स तो सबने पढ़ी होगी, राइट? फिजिक्स पढ़ा हुआ है ना। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन द साउंड। तो प्रकाश, किताबों में पढ़ा था प्रकाश की गति ध्वनि से तेज हुआ करती है। शायद इसीलिए तुम्हारे आंखों से कहे बोल तुम्हारे शब्दों से पहले मेरी आंख की कोर तक पहुंच के ठहर जाते हैं। तुम्हारे शब्द मुझ तक पहुंच ही कहां पाते हैं। तुम्हारे शब्द मुझ तक पहुंच ही कहां पाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत 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 ब्यूटीफुल सर। तो आप तक पहुंची कविताएं? बहुत खूब अनूप भाई, बहुत ही बढ़िया। चलिए, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद, धन्यवाद। और चलिए अब मैं एक अंतिम देखिए, कविता जो भी इसके अंदर मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने जो एक हिंदी भाषा में कविता
और एक साइंटिफिक में समझाई, तो मेरे ख्याल से साइंटिफिक वे वाली कविता ज्यादा दिल को छू गई, वो ज्यादा करीब आई उस कविता को सुनना, क्योंकि लोग इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते इतने वो हो गए हैं कि शायद वो हिंदी के शब्द भूल के अब इन प्रकाश की गति और इसके अंदर आ गए, तो उनको और अच्छे से समझ में आया कि अच्छा कि अनूप भाई क्या कहना चाह। बहुत बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, और ऑफ कोर्स मैंने जो ऑडियंस चुनी है वो भी सही है, तो यहाँ पे अच्छा, अब एक दो पंक्तियों की कविता मैं देता हूँ। तो इसमें देखिए, इसमें भी गणित है ना, गणित का मैंने प्रयोग किया है, और देखिए आप तक पहुंचती है कि अंकों की गणित और तर्क की ज्यामिति, ज्योमेट्री, अंकों की गणित और तर्क की ज्यामिति के दायरे में जिंदगी एक कठिन समीकरण बन गई थी, समीकरण, इक्वेशन। तो देखिए मैंने इसमें तीनों गणित जो होती हैं, अरिथमेटिक, अंकों की गणित, तर्क की ज्यामिति विच इज ज्योमेट्री, समीकरण बन गई थी एल्जेब्रा। तो तीनों गणित का मैंने इसमें प्रयोग करने की कोशिश की है। और फिर क्या होता है देखिए कि अंकों की गणित और तर्क की ज्यामिति के दायरे में कैद जिंदगी एक कठिन समीकरण बन गई थी। तुम चुपके से आई और मेरे कान में बस इतना ही कहा, सुनो। कि तुम चुपके से आई और मेरे कान में बस इतना ही कहा कि सुनो, मैं और जिंदगी के सभी तमाम कठिन प्रश्न बड़े आसान से लगने लगे। वाह वाह, बहुत बढ़िया, वेरी ब्यूटीफुल सर, वेरी बढ़िया, बहुत सुंदर। तो चलिए भाई, बहुत कविता हुई, और जैसा मैंने कहा कि हम 5-7 मिनट फिर से आएंगे आपके बीच में, जिसमें मैं बात करना चाहूंगा कि कैसे आप इंजीनियरिंग में रहते हुए अपने आप को कला से, कविता से, हिंदी से जोड़ सकते हैं। और अब मैं आप आमंत्रित कर एक चीज कहना चाह रहा हूँ, आपने फिजिक्स और गणित की बात करी, आपको डिस्कस कर अभी पता नहीं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, और क्योंकि यूथ के साथ हूँ तो मुझे 2 लाइन मेरे को भी याद आ गई। अब वो केमिस्ट्री का मान लीजिए, क्योंकि फिर वरना एक पीसीएम हम लोग पढ़ते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो फिजिक्स पढ़ ली, मैथ्स पढ़ ली, अब केमिस्ट्री पढ़ना नाराज हो सकती है। इसमें यह है कि तू एक पानी की तरह एक गिलास में है और मैं कठोर जो बर्फ का टुकड़ा होता है वो दूर बैठा तेरे को देख रहा था, लेकिन जब मैं तेरे आके तेरे में मिला तो हम दोनों का स्वरूप एक ही हो गया। क्या बात है, बर्फ का आइस क्यूब को पानी में डालिए और थोड़ी देर मिलने दीजिए उनको, तो दोनों एक ही हो जाते हैं। तो ये मेरा केमिस्ट्री का इनपुट अभी अभी डेवलप आपको देख के, एक कहते हैं ना वो देख देख के एकदम निकल के आती है चीजें, तो वो एक रास्ता निकल के आया। बहुत अच्छा। ये इसको इस तरह भी कह सकते हो कि मैं बर्फ का टुकड़ा, हाँ, तुम्हें कठोर टुकड़ा तुम जैसे पानी को देखते ही पिघल गया। पानी रूपी तेरे को देख के पिघल गया, और हम, हाँ, है ना। चलो, तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, जैसे मैं कह रहा था, हमारी छोटी बहन की तरह है शार्दुला नौगजा। तो हम करीब 15 बरस से हम लोग अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे, अलग अलग, जिसके बारे में हम बात करेंगे अंत में, हम लोग काम कर रहे हैं। और वही है कि हम लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, लेकिन हिंदी से प्रेम है, तो उसको कैसे बचाए रखा है हमने, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसलिए नहीं कि हम अपनी उपलब्धियों को दिखाना चाहते हैं, लेकिन आपको एक बताना चाहते हैं कि वो संभव है ना। तो मैं शार्दुला को आमंत्रित करूंगा। शार्दुला ने भी कुछ नई नई बातें सोची हैं आज के कार्यक्रम के बारे में, और मुझे ठीक से मालूम भी नहीं है कि वो क्या करने जा रही हैं, लेकिन मैं आमंत्रित करता हूँ। शार्दुला बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं। आप जाकर YouTube पर अगर उनका नाम डालेंगे तो आपको बहुत अच्छी कविताएं सुनने को मिलेंगी। एक उनकी जो बेहद
प्रिय मेरी कविता है, माँ मुझे कुछ कहना, मुझे कहना है। वाह, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर, दिल को छूने बहुत ही वाली सुंदर कविता। कविता, और बहुत ही सुंदर शार्दुला ने भी और बहुत इमोशनल भी बहुत है। और वो बहुत मैं ही एक मेरी तरफ से मैं प्रार्थना भी करूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जाने से पहले वो इनसे जो YouTube पे सुनने का मजा है, उससे अच्छा जब आप साक्षात हैं, तो जब हो तो उस कविता को यहाँ भी साक्षात रूप में सुनें। उसके लिंक हम लोग चैट बॉक्स में डाल देंगे, एक्चुअली वो सबसे बढ़िया रहेगा। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ शार्दुला को, जो बहुत अच्छी कवित्री हैं। सिंगापुर में कविताई नाम से उनकी एक संस्था है जिसके द्वारा उन्होंने बहुत से हिंदी के काम किए हैं, और वैसे ऑफ कोर्स इंजीनियर हैं, और कोटा में राजस्थान से और जर्मनी से इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, पेट्रोलियम इंजीनियर हैं। शार्दुला नौजा। बहुत शुक्रिया अनूपदा, मनीष जी, अनुराधा जी, हीना और सारे बच्चों। मैं जब आप लोगों के नाम पढ़ रही हूँ, खाली प्रशांत के अलावा किसी का वीडियो ऑन नहीं है, तो मैं नाम पढ़ रही हूँ और मैं देख रही हूँ कितनी सुंदर नाम है आप लोगों के। अंकित, तरंग, अमनदीप, अमन, तीर्थंकर, अद्वैत, रश्मिता। मैं ये सोच रही थी कि इन शब्दों को उठाकर ही एक कविता बन सकती है। इतने सुंदर नाम वाले बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। आज रामधारी सिंह दिनकर जी का, जो कि हिंदी के मैं महाकवि बोल मानती हूँ उनको, हमारे राष्ट्र कवि रह चुके हैं। 2 राष्ट्र कवि हुए हैं भारत के, एक मैथिली शरण गुप्त और उनके बाद रामधारी सिंह दिनकर। तो आज रामधारी सिंह दिनकर का जन्मदिन है, 23 तारीख को, 23 सितंबर को 113वां जन्मदिन है, और हमने बहुत से कार्यक्रम किए हैं। तो आज जब मनीष जी से बात हुई, मैंने कहा मैं बहुत खुश हूँ कि आज के दिन बुलाया। रामधारी सिंह दिनकर का छात्रों के प्रति बहुत प्रेम था, और उन्होंने छात्र सहोदर नाम से एक पत्रिका निकाली, जो क्योंकि वो उस समय लिखते थे जब भारत पराधीन था। पर मुझे ऐसा लगता है कि समस्याएं तो कम नहीं है, अभी भी जो स्टूडेंट एक्टिविज्म है उसकी उतनी ही जरूरत है कि आप लोग खाली अपनी पढ़ाई, अपने नंबर या अपनी अचीवमेंट से परे भी कुछ और कर सकें। क्योंकि आपका अचीवमेंट, आपके साथ जो कुछ है, धन संपत्ति संपदा जो आएगा वो एक तरफ है, मगर जो आपका संतुष्टि है, आत्म संतुष्टि, वो कुछ दे के ही आता है आपको। और मैं एक काम करती हूँ, आज शुरू करते वक्त मैं रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है, ओ द्विधाग्रस्त शार्दुल, उसका एक लास्ट पैरा, अंतिम बंद मैं आपको सुनाती हूँ। द्विधाग्रस्त मतलब होता है जिसको दुविधा है, somebody who is नॉन डिसाइडेड कि मुझे करना क्या है, मैं ये करूं कि वो करूं, जो डिलेमा में है, ऐसे किसी से वो ऐसे किसी व्यक्ति को वो संबोधित कर रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं, और ये पूरी एक तरह से जैसे जागरण की कविता है, आह्वान की कविता है कि आपकी जिंदगी में भी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत कुछ, कभी कभी अंदर प्रॉब्लम्स होंगी, कभी एक्सटर्नल प्रॉब्लम होंगी, मगर हमें हमेशा आगे बढ़ना है। तो एक छोटा सा उनका बंद, नख दंत देख मत हृदय हार, गृह भेद देख मत हो अधीर। आप लोगों के भी अंदर जो ग्रुप्स है उसके कभी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, और एक्सटर्नल प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा हमें इंटरनल प्रॉब्लम्स प्रभावित करती हैं, हम मायूस हो जाते हैं। तो क्या बोला है उन्होंने, नख दंत देख मत हृदय हार, गृह भेद देख मत हो अधीर, अंतर की अतुल उमंग देख, देखे अपनी जंजीर वीर। कोई वीर व्यक्ति है वो जंजीर की तरफ देखता है? नहीं, देखिए अपनी जंजीर वीर, यह पवन परम अनुकूल देख, रे देख भुजा का बल अथा, तू चले बेड़ियां तोड़ कही, रोकेगा आकर कौन राह। जब तुम डिसाइड कर लेते हो तो कौन तुमको रोक सकता है। क्या बात है। डगमग धरती पर दमित तेज, सागर पारे सा उठे डोल, उठ जाग समय अब शेष नहीं। सबसे बड़ी बात कि टाइम भागा जा रहा है, उठ जाग समय अब शेष नहीं, भारत माँ के शार्दुल बोल, ओ द्विधाग्रस्त शार्दुल बोल। तो कभी भी डिलेमा में हो तो हमारे जो पूर्वज, हमारी जो विरासत है जो हमें कह गई है, हम वो समझें और बहुत संभल पाएंगे उनसे, क्योंकि वो
पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस, उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया है, लोगों को रोशनी दी है। तो कविता की जो मशाल है वो इस तरह जलती रहती है कि आज उनके लिखने के करीब करीब 90 साल बाद भी हम लोग उसको पढ़ के उससे रोशनी पाते हैं। ये बात है। अगर वो खाली अपनी जॉब करते रहते और जॉब में प्रमोशंस पाते रहते तो शायद रामधारी सिंह दिनकर को कोई याद नहीं रखता। उन्होंने छोटा सा टाइम अंग्रेजों के साथ काम किया और 24 तबादले हो गए 5 साल में उनके, क्योंकि उन्होंने वो किया जो उनका मन कहता था। तो ये सब हमारे सामने हैं लोग, और उनकी राह पे हम चलने की कोशिश करें। अच्छा, अब मैं एक आपको साइंस की कविता सुनाती हूँ। मैं बिग डेटा के फील्ड में भी काम करती हूँ, और बिग डेटा में आप लोगों में आईटी के बच्चे हैं क्या? पता नहीं। तो नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये पूरे जितने भी ब्रांचेस हैं। और हाँ प्रशांत जो आप देख रही हैं, जब हाँ आपका मैंने देखा था पूरा बायोडेटा हुआ है, तो मैंने प्रशांत को ये कहा था, प्रशांत इज अगेन ये पिलर है यहाँ का, जो इन एक्टिविटीज में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व है। बहुत तो बढ़िया, और स्टूडेंट्स तो सब जगह के हैं ही जो यहाँ बहुत इन्वॉल्व हैं, सारी ब्रांचेस के, चाहे बायो इंजीनियरिंग हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे इंजीनियरिंग, ऑल इंजीनियरिंग स्ट्रीम सब है कंप्यूटर साइंस। बहुत बढ़िया। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि हम लोग जो मेघदूत है, जो कालिदास ने मेघदूत रचा, उसमें मेघ का काम था कालिदास की बात को बताना, उनकी जो जो कालिदास के उसमें यक्ष था उसकी बात उनकी प्रिया को बताना। और अगर आप सोचे तो जो हमारे पास क्लाउड्स हैं, सारे क्लाउड क्या करते हैं, यहाँ का डेटा लेते हैं, स्टोर करते हैं और डेटा सही जगह पर ट्रांसफर कर देते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो कालिदास मेघदूत लिख रहे थे और हम तो मेघदूत को यूज कर रहे हैं। हम लोग जो क्लाउड पे इतना काम करते हैं, इतना डेटा स्टोर करते हैं, सही जगह बनाते हैं, हम सब भी तो कालिदास जैसे काम कर रहे हैं। तो एक छोटा सा मुक्तक सुनाती हूँ आपको। उसमें 2 वर्ड्स आएंगे। एक आएगा हास, HAAS। हास का मतलब होता है हार्डवेयर एज सर्विस। जब आप जॉब करेंगे इस फील्ड में तो हार्डवेयर एज सर्विस आपको बहुत, हास बहुत कॉमनली यूज्ड है। एक होता है सास, सास मतलब सॉफ्टवेयर एज सर्विस। आप खाली सॉफ्टवेयर दे रहे हैं बिग डेटा के लिए, दूसरे में आप हार्डवेयर दे रहे हैं बिग डेटा कंप्यूटेशन के लिए। और एक जो आप शायद सभी जानते हैं, विच इज कॉल्ड पे पर यूज, कि हम लोग जितना हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी एप्लीकेशन का, खाली उतना ही पैसा देंगे, पर यूज हम लोग पैसा देंगे। तो एक छोटा सा मुक्तक है, उसमें ये तीनों शब्द हैं, देखेंगे। कालिदास गीतमय मेघदूत रच गए, मेघा तो हमारा दास बना तकनीक से। हमने मेघा को, क्लाउड को अपना दास बनाया विद टेक्नोलॉजी, है ना। कालिदास गीतमय मेघदूत रच गए, मेघा तो हमारा दास बना तकनीक से। डेटा स्टोर कर दिया, क्लाउड को भर दिया, डेटा स्टोर कर दिया, क्लाउड को भर दिया, और करवाई सारी कंप्यूटिंग नीक से। सारी कंप्यूटिंग अच्छे से करवाई है हमने क्लाउड से। और क्या किया, हास दिया, सांस दिया। जब आप हार्डवेयर एज सर्विस और सॉफ्टवेयर एज सर्विस देते हैं तो उसका रियल इम्पैक्ट लोगों की लाइफ पे क्या होता है कि जो छोटे छोटे लोग थे, जिनकी छोटी जॉब्स थी, वो जॉब्स चली जाती हैं, क्योंकि आप सेंट्रलाइज कर रहे हैं सर्विसेज को। तो डिसेंट्रलाइज जो जॉब होती है छोटी छोटी लोकल, वो चली जाती हैं। और यहीं पर मैं सोचती हूँ कि एक कवि की दृष्टि आ जाती है टेक्नोलॉजी के अंदर। ये कवि का हृदय जो टेक्नोलॉजी में बोलता है कि हास दिया, सांस दिया, मिस्त्री उदास किया। मिस्त्री को आपने उदास कर दिया, क्योंकि आप सारा जो काम है आप सेंट्रलाइज कर रहे हैं। पेपर यूज सर्विस दिया सब ठीक से, जितना पेपर यूज सर्विस है वो सब ठीक से दिया। मेघा यूं उदास क्यों है, यक्ष मन त्रास क्यों है। यक्ष मतलब सब जो अपनी बात कहना चाहता है। तो मेघा यूं उदास क्यों है, यक्ष मन त्रास क्यों है, क्या हम संवेदना के हट गए लीक से। ये क्वेश्चन है कि क्या हम लोग जो संवेदना का लीक है, जहां पर हर व्यक्ति की जॉब जरूरी है, क्या हम लोग जो क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहे हैं वो सब उन लोगों की पेट पे क्या लात मार रहे हैं हम।
तो ये एक पोम है जिसमें साइंस और एक कवि का जो वो है दर्शन है, दोनों सामने आता है। क्योंकि आप लोग यंग लोग हैं तो मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ। कविता का शीर्षक है अगर तुम नहीं होते। तो क्या होते अगर तुम नहीं होते। अगर तुम नहीं होते, भैरवी राग होते तुम। अगर तुम नहीं होते, भैरवी राग होते तुम। जवां दिल में धधकती जो, वो पुख्ता आग होते तुम। आग होते जितनी आग वाह। जवां दिल में है वो हम्म। नहीं है, तो जवां दिल में धधकती जो, वो पुख्ता आग होते तुम। हिसाबों में खरेपन से भरी खचपच बही होते। हिसाबों में खरेपन से भरी खचपच बही होते। गांव की पीठ थपकाते सजल लंबी नदी होते। अगर तुम नहीं होते। वाह वाह वाह। अगर एटम कोई होते तो क्या होते। अगर आप सोचें, आपका जो गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, अगर वो एटम होता तो क्या होता। अगर एटम कोई होते, चतुर्भुज कार्बन होते। अगर एटम कोई होते, चतुर्भुज कार्बन होते। सभी का पर किसी का ना, सभी का पर किसी का ना, सदा जोगी का मन होते। चयन कर पुस्तकें देते, अनुभवी हाथ होते तुम। कला संग देखते जड़वत, पारखी साथ होते तुम। कीमती जो सदा सबसे, कीमती जो सदा सबसे, बालपन की हंसी होते। पीढ़ियां मिल जहां रहती, वो बाबा की जमी होते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पीढ़ियां मिल जहां रहती, वो बाबा की जमी होते। पठाए मेघ से चिट्ठिया, पठाए मेघ से चिट्ठिया, रखे बोतल में संदेशे। अब बॉटल में लेटर्स का जमाना तो इतना रहा नहीं। पठाए मेघ से चिट्ठिया, रखे बोतल में संदेशे। सरलता तुम भरोसों की, पराजित जिन से अंदेशे। कभी तुम कुछ नहीं होते, कभी तुम कुछ नहीं होते। कभी होते सभी कुछ तुम। कभी तुम कुछ नहीं होते, कभी होते सभी कुछ तुम। अगन पानी, हवा माटी, और ईथर में ना होते गुम। और ईथर में ना होते गुम। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आप सबके साथ, आप सब में कौन कौन है जो कविता करता है, चाहे अंग्रेजी में चाहे हिंदी में। कितने लोग करते हैं। आप लोग अपने रिएक्शंस में अपने हाथ ऊपर कर लें या ताली बजा दें तो मुझे पता चल जाएगा। मैं 1 सेकंड रुकती हूँ आपके रिएक्शन के लिए। कौन कौन कविता करता है। Madam, maximum student, they write poetry in their own. I can invite Tarang. He's a wonderful poet. बहुत बढ़िया बात। अब ये तो बहुत ही बढ़िया है। बहुत बढ़िया बात। हो सकता है आप इसमें से इंग्लिश में करते हो या अपनी भाषा में करते हो। आप आज आपको अगले 15 मिनट में मैं आप सबसे कविता लिखवाऊंगी। और जो कविता का एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं उसका नाम है ब्लैकआउट पोइट्री। ये ब्लैकआउट पोइट्री एक नई तरह की एक्सरसाइज है और अंग्रेजी कविताओं में बहुत चलती है। इसमें क्या होता है कि आप, जैसे मेरे हाथ में एक ये मैगजीन है, कोई मैगजीन या कोई अखबार लेते हैं, उस अखबार को आप ब्राउज करते हैं, जहां आपको लगता है अरे ये शब्द मुझे ठीक लग रहे हैं, आप उसमें से कुछ शब्द चुनते जाते हैं और बाकियों को एक मार्कर से काला करते जाते हैं। तो आप जब शब्द सारे चुन लेते हैं तो आपकी जो कविता है, खाली जो आपने शब्द चुने हैं वो दिखता है और बाकी सारा का सारा काला हो जाता है। तो ये होता है ब्लैकआउट पोएट्री। मगर हम जिस मीडियम में हैं अभी वो, अच्छा ये तो फिजिकल मीडियम है। मैं चाहूंगी कि आपके जो लिटरेरी क्लब्स हैं वो थोड़ा यूट्यूब पे सर्च करें और हिंदी में भी ब्लैकआउट पोइट्री का आप लोग वो करें, उपक्रम करें, आप लोग एक्सरसाइजेस करें और उसमें देखेंगे। सबसे मजेदार बात मुझे जो ब्लैकआउट पोइट्री की एक्सरसाइजेस में लगती है कि बिल्कुल सेम शब्द में
दो जने जो बिल्कुल एक जैसे क्लास में बैठते हैं, वो बिल्कुल अलग तरह की कविता लिखते हैं, और ये इतनी खुशी होती है इस बात से। मगर चूंकि हम लोग अभी जूम पे हैं, तो मैंने जैसे एक मैगजीन में ये आप देख रहे हैं, ये वाला साइड, ये इरशाद कामिल जी का फोटो है, और ये मैगजीन विश्व रंग के नाम से है, क्योंकि मुझे सिंगापुर में बहुत हिंदी स्टफ नहीं मिलता है, तो जो मेरे पास था मैंने वो मैगजीन उठा के उसमें से मैंने कुछ शब्द सेलेक्ट कर लिए हैं। अब वो सब शब्द मैं आपको दूंगी, और फिर हम लोग 3 मिनट लेंगे और उन शब्दों से हम कविता लिखेंगे। अच्छा, ब्लैकआउट पोइट्री की एक बात है। ब्लैकआउट पोइट्री में क्योंकि हम लोग रियल में तो एक कागज पर ब्लैकआउट कर रहे हैं, तो शब्दों का फ्लो चेंज नहीं होता है और शब्द हम ऐड नहीं कर पाते हैं उसमें। मगर चूंकि हम लोग ये पहली बार जूम पे कर रहे हैं आप लोगों के साथ, तो मैं आपको जो शब्द दूंगी, क्योंकि जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो मैं आपको बताऊंगी, आप उनको लिखिए। वैसे सबसे आसान रहता है अपने सेलफोन में लिखना, बट आई थिंक आप में से बहुत लोग सेलफोन से ही जुड़े हैं, तो वो लोग कोई पेपर पेंसिल ले लें और शब्द लिखें। आप चाहें तो शब्दों के सीक्वेंस को इधर उधर कर दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम पहली बार ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। दूसरा, आप शब्द में अपने नए शब्द भी जोड़ सकते हैं, और मैं आपको जो फ्रेजेस दूंगी या शब्द दूंगी, उन फ्रेजेस को तो तोड़ नहीं सकते आप, मगर कुछ को छोड़ सकते हैं कि हाँ भाई ये शब्द मेरे उसमें बैठ नहीं रहा। सबसे बड़ी बात, केवल 3 मिनट आपको मिलेंगे, और मैंने जो हाईलाइट किए हैं शब्द आपको वो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। आप लोग अपने अपने जहां नोट कर सकते हैं वहां नोट करें। आप लोग को अगर 1 मिनट में पेन पेंसिल उठानी है और वेट करना है तो बताएं मुझे। नहीं मैम, दे आर ऑलरेडी रेडी विद द पेन एंड पेपर। वंडरफुल, आई थिंक वी कैन बहुत कैरी ऑन। बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। तो क्योंकि ये इरशाद कामिल की रिपोर्ट थी, इरशाद कामिल विश्व रंग में आए थे, आपको पता है कितने सुंदर उन्होंने गाने दिए हैं फिल्मों में, तो उनकी रिपोर्ट है, तो काफी अच्छे शब्द हैं। एक शब्द है सुरमई पंखों पर सवार, ये पूरा फ्रेज है, आपको फ्रेज रखना पड़ेगा। हाँ, सुरमई पंखों पर सवार, लिखिए आप लोग। अगला इसको हम पेस्ट भी कर सकते हैं चैट बॉक्स में, सो दैट अगर कोई हाँ, मैं इसको, मुझे एक काम करती हूँ मैं, लेकिन उसमें शायद अनूप भाई टाइम लग सकता है। टाइम लग जाएगा। ओके, दैट्स फाइन। ओके, तो सब ये लोग बहुत अच्छे वो हैं लिखने में, कोई दिक्कत नहीं है, इनको कोई दूसरा है कठिनाई शाम, दूसरा शब्द है शाम, तीसरा है शाम लिखा आप लोगों ने, तीसरा है सम्मोहित। ये सब उस रिपोर्ट, न्यूज रिपोर्ट की सारे शब्द हैं। तीसरा है तुम्हारा सनम, चौथा। तो सुरमई पंखों पर सवार, दूसरा शाम, तीसरा सम्मोहित, चौथा शब्द है तुम्हारा सनम, पांचवा फ्रेज है सफर तय किया, सफर तय किया। फिर फ्रेज है दिल की बात को, दिल की बात को। फिर है एहसासों को लिखता हूं। मैंने शब्द ज्यादा चुने क्योंकि मुझे श्योर नहीं था कि आप लोग कविता करते हैं, तो मैंने कहा आप छोड़ देंगे शब्दों को, बहुतों को, इसलिए ज्यादा चुन लिए मैंने। एहसासों को लिखता हूं। फिर है बदहवासी, बदहवासी मीन्स कंफ्यूजन, और बेचैनियों मतलब अनइजीनेस। बदहवासी और बेचैनियों का मंजर, ये पूरा फ्रेज है, ये आपको पूरा फ्रेज की तरह यूज करना है। बदहवासी और बेचैनियों का मंजर, मंजर मतलब होता है एक सिचुएशन या सीन, मंजर का ये मतलब है। एक शब्द है अधिकारों, अधिकारों मीन्स राइट्स, अधिकारों। फिर है अनुभव, एक्सपीरियंस। फिर है मासूमियत और सहजता, इनोसेंस एंड इजीनेस, मासूमियत और सहजता। फिर है संवाद हुआ, संवाद हुआ, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हुआ। फिर है प्रीति, प्रीति मतलब प्यार, तो प्रीति। फिर है युवा, युवा यानी कि आप सब। फिर है अनुपम,
अनुपम मीन्स एक्सलेंट, जिसकी कोई उपमा नहीं हो, जिसका कोई कंपैरिजन ना हो, वो अनुपम। फिर एक फ्रेज है, ये फ्रेज एक्चुअली एक किताब का नाम है जो रिपोर्ट के अंदर थी। किताब है नदी से सटकर बहता है समय। ये इतना सुंदर फ्रेज है कि मैं चाहती हूँ कि आप सबकी कविताओं में ये फ्रेज पूरा आए। जस्ट इमेजिन दैट टाइम इज मूविंग अलोंग विद द रिवर। व्हाट अ ब्यूटीफुल इमेजरी जो है, कितनी सुंदर है। नदी से सटकर बहता है समय, और लास्ट उर्वर मस्तिष्क, यानी कि ब्रेन विच इज वेरी फुल ऑफ इमेजिनेशन, इट्स अ वेरी फर्टाइल ब्रेन, है ना। उर्वर मस्तिष्क मीन्स फर्टाइल ब्रेन। ये सारा हो गया। मेरे यहाँ पर 9:22 हो रहा है, तो मैं आपको लास्ट वाला, आपने आखिरी वाला क्या बोला है? पहला उर्वर, वर्ड उर्वर, उर्वर फर्टाइल हो गया। हाँ, उर्वर फर्टाइल मस्तिष्क, उर्वर मस्तिष्क। आप में से जिसने नहीं लिखा है, मैं वापस एक बार पूरा जल्दी से बोलती हूँ, आप देखें और रोक लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना माइक ऑन करके मुझे रोक लें। सुरमई पंखों पर सवार शाम, सम्मोहित तुम्हारा सनम, सफर तय किया दिल की बात को, एहसासों को लिखता हूं, बदहवासी और बेचैनियों का मंजर, अधिकारों, अनुभव, मासूमियत और सहजता, संवाद हुआ प्रीति, युवा, अनुपम, नदी से सटकर बहता है समय, उर्वर मस्तिष्क। अब चूंकि हम पहली बार कर रहे हैं, तो आपको इसका आप सीक्वेंस भी बदल सकते हैं इस वाले गेम में, और आप जो आपको पसंद नहीं है शब्द उनको छोड़ भी सकते हैं। मगर अगर फ्रेज उठाते हैं तो फ्रेज को आप एज इट इज यूज करें, 10 का 10 आप उसको इस्तेमाल करें। 9:24 हो गए मेरे यहाँ। मैं आपको 5 या 6 मिनट देती हूँ, क्योंकि आपका हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो आप 5 मिनट लीजिए। यूजुअली ये एक्सरसाइज 3 मिनट में करते हैं, आप 5 मिनट लीजिए। और किसी को, अगर किसी के हैंडी है म्यूजिक, तो कोई म्यूजिक लगा दे। 5 मिनट आप लोग लिखिए, और मैं फिर उसके बाद 3 जनों को Ma'am, possible, I'll request Tarang to please put on our official Awake Dramatic Club theme song. बहुत बढ़िया, Tarang, बहुत बढ़िया। और Tarang, is it possible? मैं आप लोगों में से रैंडम लोगों को बुलाकर सुनूंगी, तो आप लोग लिखिए। वरना आप नहीं लिखेंगे तो बाकी जो टाइम है उसमें 10 मिनट अनूपदा के लिए है और बाकी बस आप लोगों के लिए ही है। हाँ तरंग, आप लगाएं सॉन्ग, आप म्यूट पे हैं। यस मैम, कर रहे हैं थोड़ा। बिल्कुल। इसमें आप अपने शब्द ऐड करिए आराम से। हाँ? आराम से अपने कोई भी शब्द अपने ऐड करते जाइए और ऊपर नीचे करते जाइए। एक सबसे बड़ी जो बात पोइट्री में होती है कि जब आप पोइट्री को बंद करते हैं तो ऐसा लगे कि आपने बस नीचे से कोई सहला दिया है उसको। पोइट्री ऐसे खुली खुली नहीं होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। पोइट्री एक कल्मिनेशन पे आनी चाहिए। जो पोइट्री का सबसे बढ़िया चीज होती है वो उसकी एंडिंग होती है। तो आप एंडिंग को लूज एंड मत छोड़िएगा पोइट्री में। जल्दी चिंता मत करिए जल्दी की, पोइट्री को नीचे से बंद करिए। अनुता, आपसे भी सुनेंगे, आप भी लिखिए।
आज तो हम इनको ही सुनेंगे, मैं लिखूंगा लेकिन इसके ऊपर और उसके ऊपर शेयर कर आज, लेकिन हम बच्चों से सुनेंगे। मैम यू आर म्यूट। मैं कह रही हूँ जितना हो सकेगा उतने हम बच्चों को सुनना चाहेंगे आज। जिनको सुनाने के लिए समय नहीं मिल पाए वो लोग चैट बॉक्स में उसको पोस्ट कर सकते हैं। दो मिनट बाकी है, किसी ने अगर लिख लिया हो तो बता देना। मैम मैंने ट्राई किया है सिर्फ 4 फ्रेजेस को, क्या मैं पढूं? हाँ बिल्कुल, पढ़ना चालू करिए। बाकी बच्चों से एक बार पूछ लें, आर दे ओके कि कोई पढ़ा है तो आर यू ओके विद दैट, कि आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपको पीस चाहिए थोड़ा। अच्छा, कोई कुछ कह नहीं रहा है, बच्चे तो शायद लिख ही रहे हैं। थोड़ी Yeah, I देर think उनको you're right. थोड़ा पीस दे देते हैं, क्योंकि उनके लिए फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। पर अनुराधा जी आपसे ही शुरू करेंगे हम लोग। थैंक यू। इट इज जस्ट 4 फ्रेज लिया है बिकॉज द रेस्ट मैं उतना समझ में नहीं पाया। नहीं, बहुत बढ़िया बात है। 2 चीजें हैं इससे, एक तो वो 4 फ्रेज आपके फेवरेट हो गए, दूसरा जो हाँ। समझ नहीं पाए उसको आप बाद में किसी से डिस्कशन करके पूछ लेंगे। हाँ। या मैम लिखा है मैम। रॉबिन आपने लिख लिया? मैम प्रखर। यस मैम। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अनुराधा मैम, फिर प्रखर, और बताएं किसने लिख लिया? I would like to give it a try. वाओ राधिका, वंडरफुल। और बताएं। तो क्योंकि ये वर्ड मैंने ऐसे नहीं चुने हैं, इट इज रियली आउट ऑफ दैट मैगजीन। और ये जो ब्लैकआउट पोइट्री है, ये एक आर्ट फॉर्म की तरह एकदम जैसे फॉरेस्ट फायर होता है, ऐसे पकड़ लिया है इसने इंग्लिश स्पेस को। लोग बाग क्या करते हैं, ये जो बचा हुआ स्पेस जिसको वो ब्लैकआउट करते हैं, उस पे डिजाइन बनाते हैं, उस पे फ्लावर्स बनाते हैं। अगर थीम जो है, सपोज समुद्र का थीम है तो वेव्स बना देते हैं, और ऐसे ब्लैकआउट करके बहुत अलग। अब जैसे ही आप गूगल करेंगे ब्लैकआउट पोइट्री, आपको बहुत कुछ मिलेगा। और ये हिंदी कविता, या अगर आप आपकी किसी खुद की जो लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज, वो आप नहीं जानते हैं, ज्यादा अच्छे से उसके वर्ड्स नहीं जानते हैं, वो लिखने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। क्योंकि आप किसी की वोकैब यूज कर रहे हैं, किसी और की वोकैब यूज करके आप एक बहुत अच्छा सा एक यू आर मेकिंग सेंस आउट ऑफ इट। हेलो, यस मैम, कंप्लीट हो गया। बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से नाउ लेट्स गो। हाँ, लेट्स गिव इट अ गो। अनुराधा मैम आप शुरू करें। अच्छा, थैंक यू मैम। अच्छा, मैंने 4 फ्रेजेस जो मुझे बहुत पसंद आई और जो मुझे समझ में आया उसको से चूज किया है मैंने। कुछ ऐसा है, सुरमई पंखों पर सवार सफर तय किया, दिल की बात को लेकर सम्मोहित किसको करे। ऐसे। क्या बात है, वाह वाह शानदार, वाह, शानदार। वेरी गुड, बहुत अच्छे Thank you, अनुराधा ma'am. जी। बहुत बढ़िया। अच्छे। अनुराधा जी, इज इट योर फर्स्ट हिंदी पोम? Yeah, it is my first Hindi poem, ma'am. Excellent. 3 cheers for you. 3 cheers for you. Wonderful. Thank you. Now I think Prakhar was the next one. बहुत सुंदर है अनुराधा, बहुत सुंदर। प्रखर आप बोलें।
Yes, ma'am. Ma'am, hello, ma'am. Am I visible? मैम मैंने Yes, लिखा yes. है, मैंने कुछ फ्रेजेस का यूज किया है और मैम मैंने इस तरीके से लिखा है। इस अनुपम सी शाम में जब समय सुरमई पंखों पर सवार, जब छाया हुआ है बदहवासी और बेचैनियों का मंजर, मैं अपनी प्रीति, अधिकारों और अनुभवों के उर्वर मस्तिष्क से अपने दिल की बात, अपने एहसासों को लिखता हूँ, उन्हें नया रूप देता हूँ, उन्हें संवारता हूँ। बहुत वाह अच्छी, वाह, बात है बहुत प्रखर, बढ़िया, क्या बात है, क्या बात, एक्सीलेंट प्रखर, थैंक यू, क्या एक्सीलेंट। अद्भुत थैंक अद्भुत। यू मैम। बहुत बढ़िया। मैं तो कितने कितने सारे शब्दों का प्रयोग कर लिया है कविता में ना, हाँ, वो भी बड़े और अच्छे। कितनी बढ़िया Yes. बात लिखी है। ओवरऑल द फ्लो पोएट्री, द जो आपका इंपोर्ट है कविता का, वो बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया। Thank you, अच्छा, ma'am. राधिका आप बोलें। यस मैम। सो मैंने लिखा है, आज मैं अपने कुछ एहसासों को लिखता हूँ, मेरे अनुभव, मेरे अधिकार, मेरी मासूमियत और उसकी सहजता। हाँ, मैं अपने बारे में नहीं, एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं अपने बारे में नहीं, उसके बारे में चाह रहा हूँ, मगर वो भी तो क्या, मेरे अंदर का एहसास ही तो है। उसके प्रति मेरी प्रीति उससे ज्यादा मेरे बारे में थी। उसकी वो आंखें, उसके वो अंदाज मुझे सम्मोहित कर छोड़ चुके थे। That's क्या all. बात है, ये तो लव वाह, पोएट्री, ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया भाई। बहुत बढ़िया। अब तरंग वत्स आप बोलेंगे। अच्छा, नहीं, एक बच्चे ने हेमंत पहले, हेमंत था, एक हेमंत। हाँ मैम हेमंत बोले। हर्ष। हाँ हर्ष, हर्ष, आप बिल्कुल, हर्ष आप बोले। जी, तो इस कविता का शीर्षक दिया है मैंने सफर प्रेम का। प्रेम प्रीति का संवाद ही तो है। हे प्रिय, हमारा प्रेम उर्वर मस्तिष्क का सम्मोहन तो नहीं, ये कैसा अनुभव। एहसासों को लिखता हूँ तो अधिकारों की जंजाल में डूबता चला जाता हूँ। क्या बात ये है। ये समय की मासूमियत और सहजता अनायास आती जा रही है प्रेम में। प्रेम समय का सारथी ही तो है। समय नदी से सटकर बहता है समय। प्रेम कंकड़ रूपी प्रेम भी बहता है साथ में, कर जाता है हृदय को स्पंदित और बना जाता है अनुपम और मनोरम दृश्य प्रेम का। हमारा प्रेम अनुभवों का घेरा ही तो है, जिसकी एक धुरी को पकड़े चल रहे हैं हम और हम। क्या बात, बहुत अच्छे तरंग, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, क्या बात है, अच्छी कवि है। क्या बात है। हर्ष बहुत बढ़िया। एक ना हम काम करेंगे, मैं और शार्दुला दोनों अपना ईमेल एड्रेस चैट बॉक्स में डाल रहे हैं, तो आप में से दोनों में हम आप में से जो भी हमसे जुड़ना चाहें, मोस्ट वेलकम। और हम लोग, मैं थोड़ा सा बीच में समय ले लेता हूँ 1 मिनट का, कि हम लोग एक कविता की पाठशाला हम लोग चलाते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें कि हम लोग कविता का ना जो भाव पक्ष है कि आपको क्या लिखना है, वो तो हम नहीं सिखा सकते, वो तो आपके अंदर से ही आना होगा। लेकिन कविता का जो शिल्प है, उसकी जो टेक्निक्स हैं, जो ग्रामर है, वो हम लोग सिखाते हैं। तो आप हमसे जुड़िए, हम उसमें आपको कविता की पाठशाला से जोड़ेंगे। अगला जी। अच्छा, हेमंत ट्राई करना चाह रहे हैं। हेमंत आप बताएं। सुरमई पंखों पर सवार होकर ये प्रीत की शाम आई है। अपने दिल की बातों को और एहसासों को लिखता हूँ। नदी से सटकर बहता है समय, परंतु प्रेम स्थायी है। ये प्रेम वाह, ये प्रेम बदहवासी और बेचैनी का मंजर तय करके आया है, तब जाकर यह अधिकारों का मंजर पाया है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत हमारा खूब। जो टेक है, समय नदी से सटकर बहता है समय और प्रेम स्थायी है, ये जो टेक है उस पे मैंने कभी नहीं सोचा। बहुत सुंदर, मजा आ ये गया। बहुत अच्छा है, मैंने मनीष जी, अब आपका सुनूंगी। अच्छा,
लेकिन पता है क्या है, मैंने शादी में लिखने की कोशिश करी, लिखा भी है। अभी मेरे को इतना आनंद आ रहा है कि ये स्टूडेंट्स को देख के आपने जो एक्सरसाइज कराई पहले, तो ये बहुत ही प्रशंसनीय है भाई, क्योंकि इतना अच्छा एंगल मिला है कि देखिए, जो चीज एक नॉर्मल पेपर में किताबों में लिखी गई है, हमने उसमें से ही निकाल के, और इतने सारे जिसे वेरिएशन जिसे कहते हैं वो निकल के आ गए। और बच्चों ने मतलब मैं तो कमाल कर क्या कहूँ, दिया, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इन कमाल। लोगों में, जैसे मैंने अनु भाई से भी रिक्वेस्ट करी थी कि इनमें एनर्जी बहुत ज्यादा है, उसको केवल एक चैनलाइज करने की जरूरत है। तो ये आज हम केवल एक ही दो नाम जो लेते हैं कवि के, और उस फील्ड के अंदर हम सोचते हैं प्रोफेशनल नहीं जा सकता, युवा नहीं जा सकता, 2 4 10 कवि के नाम अगर पूछे जाए तो वो आते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर ये चीज भी आगे बढ़ाई जाए तो शायद इन युवाओं में से ही कई लोग, आप जब दिनकर जी की बात करते हैं, मैथिली सेनगुप्त जी की बात करते हैं, या उनकी बात करते हैं, तो इनका नाम भी कहीं ना कहीं ऐसे ही निकल के आएगा, जो आप लोग प्रयास कर रहे हैं। तो सही इसीलिए कह रहे आप हैं लोगों को आप। जोड़ने का भी ये था। तो मैं क्या कहूँ, लिखा तो है। और आप सुना दीजिए, आप ये सुना मैं दीजिए। ये मैं आपको पहले थोड़ा सा बताता हूँ। मैं रहता हूँ अभी अगरतला में, ठीक है, और वाइफ है जयपुर में। तो जब वाइफ जयपुर में है तो मैंने कहा उसको डेडिकेट किया जाए ये चीज क्या उसके बात है। लिए। तो मैंने इंस्पिरेशन वहां से ली कि इतनी दूर रह के जब मैं यहाँ से जाता हूँ जयपुर, तो क्या आता है, तो उसमें लिखा है कि जब भी मैं सुरमई पंखों पर सवार, जब भी निकलता हूँ तो शाम को ही निकलता हूँ मैं, तो जब भी सुरमई पंखों पर सवार उस शाम को जब तुम्हारी तस्वीर पे सम्मोहित होकर तुम्हारा सनम जब तुमसे मिलने के लिए उस सफर को तय करता है, तो अपने दिल की बात को व्यक्त करते हुए इन एहसासों के साथ मैं उन बदहवासी और बेचैनियों के सफर में अपना सफर जारी रखता हूँ, क्या और बात। अनुभव करता हूँ तुम्हारे उन अधिकारों और प्यार की जिसमें उस सम्मिलित है तुम्हारी वो मासूमियत और सहजता, क्या बात जो है। जो मुझे उस संवाद और प्रीत को याद दिलाती है, और उस युवा दर्शन को भी। वैसे मैं अभी भी युवा हूं, लेकिन मैं अपने इनिशियल प्यार को भी उस सफर में याद करता हुआ आगे बढ़ता हूं, जो मुझे एक इंस्पिरेशन देती है तुमसे मिलने के लिए। और वो एक अलग ही अनुपम था, जो याद दिलाता है कि आज समय नदी को सटकर बहता हुआ भी है, लेकिन मेरे उस मुखर मस्तिष्क पर उस याद को समाहित करते हुए आज भी तुम्हारे प्यार और उसका संदेश मेरे को सजीव रखता है। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया मनीष जी, तो कितना ये कुछ भी अच्छा नहीं, और मतलब मैं तो बच्चों को देख के Yes. देख रहा था कि उन्होंने इतने समय में जो कुछ लिखा, तो बहुत ही कई नाम बहुत हमें दिखाई दे रहे हैं खड़े हुए। तो रॉबिन का काफी रॉबिन कुमार, रॉबिन कुमार जी यस आप, मैम। हाँ आप पढ़िए। यस यस मैम, आवाज आ रही है क्या? आ रही है रॉबिन। आ रही है। जी। वो सुरमई पंखों पे सवार उलझे कवि का एहसास हो तुम, वो चमकती हुई दुनिया क्या दिखोगे तुम, वो भटका हुआ मुसाफिर क्या रोकोगे तुम, क्या वो वाह। एक मशहूर कवि का ख्वाब क्या समझोगे तुम। चलो एक अब खबर लिख दूं, तुम दिखा दो रोता हुआ आसमां, तो मैं एक हंसता हुआ जमी लिख दूं, तुम्हारे वाह। उलझे हुए सवालों का एक जवाब लिख दूं। चलो अब यह एक खबर लिख दूं, तुम दिखा दो महकता हो बिखरता हुआ गुलिस्तान, मैं एक महकता हुआ मकाम लिख दूं। थैंक यू। क्या वाह। बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रॉबिन, आपका बढ़िया। इनिशियल टेक तो बहुत ही बढ़िया था इस पे, बहुत अच्छा। थैंक यू। तन्मय और तरंग है ना, कौन पहले जाएगा? वो वांट टू गो फर्स्ट? तन्मय आप बोले पहले। ओके मैम, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, सभी को नमस्कार। मैंने मेरा पहला पोयम लिखा है, मासूमियत से एहसासों को लिखता हूँ, मासूमियत से एहसासों को लिखता हूँ, दिल की बात को जुबां पर लाता हूँ, नदी से सटकर सफर तय करता हूँ, सुरमई पंखों पर सवार हो जाता हूँ। क्या बात है, वाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा। और अब आप लिखते रहें और ये एक्सरसाइज करते रहें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तरंग अब आप बोलें।
मैंने थोड़ा दर्द पे लिखा है, दर्द को मतलब एहसास करते हुए उस कॉन्टेक्स्ट में। बहुत सुरमई पंखों पर सवार हर शाम तुम आती हो, सम्मोहित होकर वही खड़ा मैं देखता रहता रूप तुम्हारा सनम। मीलों का सफर तय किया, मीलों का सफर तय किया, ये खत पहुंचने को, दिल की बात को और एहसासों को लिखता हूं। हर शाम इस खत में प्रीति, हर शाम इस खत में प्रीति बदहवासी सी छा जाती है। हर शाम प्रीति और इन बेचैनियों का मंजर सहजता से सह लेता हूं। क्या बात है, क्योंकि प्यार है तो आप बहुत खूब तरह, बहुत बढ़िया। विवेक मैं देख रही हूँ बहुत अच्छा लिख रहे हैं मनीष जी, आपको तो कवि सब आपके पास है, बाहर से बुलाने की जरूरत ही नहीं। अरे हीरे हैं ये, हम लोगों के हीरे हैं। और इनको मैं हमेशा एक बात हमेशा कहता हूँ, जब भी मिलते हैं तो मैं कहता हूँ भाई कि हीरे की चमक है तो कहते हैं अंधेरे, हीरे की शपक है अंधेरे में चमक, और कांच में आके तो सूर्य धूप में आके तो कांच भी चमका करते हैं। तो ये सब डायमंड्स हैं और इनको प्यार है इन चीजों से, आर्ट से, कला से। और आज हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भारत सरकार है, उन्होंने इन बैरियर को खत्म कर दिया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये सारे बैरियर खत्म हो गए शार्दुल में। यानी एक कला आर्ट वाला आदमी इंजीनियरिंग हो चाहे मेडिकल हो उससे जुड़ सकता है, एक मेडिकल प्रोफेशनल जो है, इंजीनियर जो है, वो कला से जुड़ सकता है, कॉमर्स से जुड़ सकता है। इतने सारे अवसर और ऑप्शन दे दिए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और उसको ट्रांसफॉर्मेशन को आगे ले जाने के लिए ये लोग तैयार हैं। मतलब पॉलिसी बनाना ये भारत सरकार का नहीं, लेकिन भारत सरकार ने जिस तरह से मोटिवेशन दिया, उस मोटिवेशन में मैं बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारत सरकार को, और जो डिसीजन मेकिंग पॉलिसी मेकर हैं कि उन्होंने बैरियर को खत्म कर दिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और आपने जो अपने कविता के माध्यम से बताया कि देखिए अनूप भाई ने बताया कि आज कला इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग कला है, तो वो एक समाहित हो गए हैं सब एक साथ। बहुत खूब, बिल्कुल। विवेक विवेक का हाथ है, और लोग भी अपना हाथ ऊपर करें और सुनाएं, क्योंकि ये मंच है आपका ही। और लोग जिन्होंने थोड़ा भी लिखा है वो लोग भी बताएं। विवेक, हाँ, स्वागत है आपका। शुभ संध्या मैम। तो मेरी कविता का शीर्षक है कौन समझाए। बदहवासी और बेचैनियों का मंजर था, शाम से सम्मोहित होकर युवा नदी से तटकर बहते समय को मासूमियत और सहजता से निहारता। बस इन्हीं ख्यालों में मुग्ध है कि कब सुरमई पंखों पे सवार किसी दूसरे शहर से मानो सफर तय कर जब प्रीत से रूबरू होंगे, तो संवाद करूं या तरंगों पे अपने इन एहसासों को लिख दूं। इस उर्वर मस्तिष्क को आखिर ये कौन समझाए। वाह, बहुत खूब, अल्टीमेट, बहुत बढ़िया। ऐसी कविता जो जैसे आपने अपने लिए ही लिखी है और अपने आने वाले भविष्य के लिए लिखी है। रहीना, आप सुनाएंगे? प्रशांत बहुत देर से चुप बैठा है। प्रशांत, मेरे ख्याल से इस प्रशांत की अभी नई शादी भी हुई है, तो मेरे ख्याल से तेरी तो डेली एक कविता लिखता है तो प्रशांत एक यहाँ भी सुनाई जाए। इन एक्सरसाइज से यही तो निकल के आ रहा है। सर नई हुई है सर। क्या कह रहा है? नहीं हुई है। चलो, अच्छा, एक मनीष काम करना कि ये जो लोग नहीं सुना पा रहे हैं, नहीं, मैं ये कह रहा था कि जो लोग जो अभी नहीं सुना पा रहे हैं और जो हो सकता है कुछ लोगों को समय लगता है लिखने में, तो मेरा ये निवेदन होगा कि इस कार्यक्रम को समाप्त होने के बाद भी आप सोचते रहें इसके बारे में, और जो भी आप लिख सकते हैं उसको मनीष एक जगह कलेक्ट कर लेना और फिर हम लोगों से शेयर करना। हम उसको और जगह मंच देंगे उसको, है ना। हम लोग बहुत बढ़िया। थैंक यू। हाँ, बहुत बढ़िया। तरंग, ये नोट किया जाए और अपने ये आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे आप इन लोगों के साथ एक बैठें और बात करें और ये चर्चा चले, तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए और अगरतला के नीटा के लिए बहुत बड़ा काम होगा। थैंक यू अनूप भाई, थैंक यू वेरी मच। हम आपको अन्य अच्छे कवियों से जोड़ेंगे जो कि आपको इनपुट दे सकेंगे कविताओं के बारे में, है ना। तो बिल्कुल। चलिए, शार्दुल मैम, आपका माइक म्यूट है।
प्रशांत आप सुना रहे हैं और रहीना आप तैयार रहें। रहीना आप सुना रही हैं? Yes, ma'am. I'm from please. South, ma'am. I'm not good at Hindi. तो आप सुनाएंगी कि क्या क्या चाहते हैं, आप सुनाना चाहती हैं? Rahina, she is asking, are you comfortable to like recite the poem? I'm comfortable to recite the poem. You want to recite the poem, Rahina? Did you write anything? No, ma'am. I didn't write anything. No, okay. No problem. Then I'm not good at Hindi writing. Don't worry. Slowly. we can next time we can get words which are little less harder and we can do another exercise. Prashant, you want to do? थोड़ा सा हम लोग टाइम देख रहे हैं, तो तुम्हें याद है 10 मिनट में। हाँ, तो फिर दादा काफी हो गया यहाँ से, अब आप मंच लें। और मैं पहले अच्छा, मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे को कविता शार्दुल मैम, वो कविता माँ वाली कविता अगर आप एक बार सुना दें तो थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर। हाँ, वो ना मैं YouTube लिंक भेजूंगी। अभी मैं सोच रही हूँ कि दादा दादा बात कर लें एक बार फोरम के बारे में। हाँ ठीक है, वो YouTube पे बहुत बढ़िया है और मैंने उसमें डाल दिया है चैट बॉक्स में। मैंने भी सुना है, तो अनु भाई लोग नोट कर लें। और वो आप अदरवाइज भी जाके YouTube पे शार्दुला नौगजा आप करेंगे तो आपको मिल जाएगी, है ना। तो अब हम इसको थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं और मुझे नहीं चाहिए एक्चुअली। प्लीज सर। यस सर। मैम अभी मैं जस्ट ज्वाइन किया हूँ, तो मुझे एक पोएम सुनानी है, क्या मैं सुना सकता हूँ सर? हाँ, अरे गुड। हाँ, सुनाओ रोशन, सुनाइए सर। मैं वीडियो ऑन कर। हाँ, अच्छा। क्या मैम? आई एम ओके, आवाज आ रही है? बिल्कुल। नमस्कार, मैं रोशन को बिहार से हूँ और अभी NIT का छात्र हूँ, 2nd ईयर का। मैं कविता खुद से हूँ और हाल मौजूदा हालात है अब कविता, आप इसको। हेलो सर। हेलो सर। हाँ, बोलो। शुरू होता है इस प्रकार। चलोगे एक सफर की शुरुआत पे, आप कौन हो एक परिचय कराते हैं आपके हालात। हेलो मैम, आवाज आ रही है? आ रही है। बोलिए। क्योंकि एक सफर की शुरुआत पे आप कौन हो एक परिचय कराते हैं आपके हालात से। इंसानों का जिक्र हो तो आप सबसे पहले आते हो, जब मुसीबत आती है इंसानियत पे मदद करने में आप सबसे पीछे रह जाते हो। सीना तोड़ा कर खुद को मर्द बताते हो, फिर 3 साल की बच्चियों को रेप होने से क्यों नहीं रोक पाते हो। हमारा समाज अदा है ऐसा दा देते हो, जिनके साथ गलत हुआ है उन्हें अपने समाज में क्यों नहीं देते हो। ममता की मूरत भगवान ने औरत को बनाया, फिर बीच चौराहे पे बेगुनाह लाचार पर थप्पड़ बरसाते हो। हम इल्जाम सी पे नहीं पर इस प्रकार के हमारे बीच से लेकर आते हैं। इंसानों ने पैसे से पान बताते हैं लोग, न जाने गरीब की सेवा करते करते खुद कैसे अमीर जाते हैं लोग। कंप्यूटर पे काम करने वाले को हाई स्टैंडर्ड बताते हैं, मिट्टी में लिपट कर जो किसान आपके लिए अनाज उपजाता है उसे आप नीचा क्यों दिखाते हैं। रोशन, इस कविता को हमें भेज दो, इसको ना एक या तो चैट बॉक्स में डाल दो या जो हमने ईमेल एड्रेस दिए हैं उसमें हमें भेज दो, तो हम लोग इसको पढ़ के तुम्हें अपनी राय देंगे। पर बहुत अच्छी कविता है। बहुत अच्छी कविता है सर। बहुत बढ़िया। अभी सर रुकिए, अभी सर 2 मिनट मेरी। रोशन क्या है कि ये प्रोग्राम बेटा अभी आगे इनका एक्सटेंशन है बच्चों का और दूसरे प्रोग्राम, और जूम में टाइम लिमिट होती है, इसलिए थोड़ा सा हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको आप लिखिए, भेजिए, इनके साथ जुड़िए और कविता की पाठशाला जो अभी भेजा गया है उसमें इसको लगवाइए। रोशन, आप एक बार वो मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा जूम से निकलने के बाद। NIT श्रीनगर से। मनीष, इसको ना थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं। बहुत सबसे पहली बात तो बहुत अच्छा रहा
और आप लोगों ने हमें ऊर्जा दी एक्चुअली। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और शार्दुला का तो, शार्दुला ने तो कमाल कर दिया। इसको शार्दुला आगे बढ़ाएंगे हम लोग, और ये पहली बार हम लोगों ने किया है एक्चुअली, ये जो प्रयोग किया है हमने पहली बार किया है, लेकिन हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो मैं जाते जाते छोटी छोटी सी बातें, एक जो आपने कही थी कि मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बड़े कवियों की चिंता मत करिए, बड़े कवि हैं वो बड़े कवि रहेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी कविता को आगे ना आने दें, है ना। आजकल जो एक जिसको मैं कहूंगा डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है, कि पहले तो ना कुछ ही पत्रिकाएं होती थी जिनमें छपना बड़ा मुश्किल होता था, तो कवि को अपने आप को आगे लाना बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन अब तो बड़ा आसान है, आप अपना एक ब्लॉग बनाइए, 2 मिनट में आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं, है ना, और उस पे कविताएं पोस्ट करना शुरू कीजिए। फेसबुक है आजकल, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पे आप बहुत से कविताओं के बहुत से ग्रुप्स बने हुए हैं, उनसे जुड़िए, उनके साथ शेयर कीजिए, है ना। तो जब आप अपनी कविता को बांटेंगे दूसरों के साथ, तो आपको जो इनपुट मिलेगा उसके लिए वो आपके बहुत काम आएगा, है ना। तो एक तो ये मैंने कहा, एक दो हमने यहाँ पे कुछ फॉर्म्स दिए हैं कि अगर आप हिंदी से या कविता से जुड़े हुए प्रयासों से किसी भी तरह जुड़ना चाहते हैं, तो एक फॉर्म है वो मैंने दिया है, मैं उसको दोबारा पोस्ट कर दूंगा, लेकिन आप उस छोटे से फॉर्म को भरिए और हमें बताइए कि आप जुड़ना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, और हम आपको एक मंच देंगे जहां पर आप कुछ कर सकेंगे और आप उसका परिणाम देख सकेंगे सीधे सीधे, है ना। तो ये एक मेरा आपसे अनुरोध होगा। और आपके जो आवर्स होते हैं ना, जो आप लोगों के, शायद मेरे ख्याल से उन आवर्स में भी दादा ये गिन सकते हैं क्या? इन लोगों के कुछ आवर्स होते होंगे जो ये लोग सोशल वर्क या करने के लिए इनका होता होगा, मुझे तो उसमें भी शायद, क्योंकि वो आप सचिवालय का काम करने को बोलेंगे तो उसमें। बिल्कुल, नहीं, बहुत अच्छी बात। तो एक आपको मैं छोटा सा बता दूं कि मैं विश्व हिंदी सचिवालय, जो वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट, जो कि मॉरिशस में लोकेटेड है, स्थित है, उसका मैं समन्वयक हूं। तो हम उसके अंतर्गत भी काफी योजनाओं पर काम कर रहे हैं, और अगर आप उनमें काम करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसके लिए, जो कि शायद आपके कहीं काम आ सके, है ना। जो भी आप काम करेंगे हम आपको उसको पूरी तरह से, उसको हम लोग रेखांकित करेंगे, पूरी तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे, आपका नाम उसकी वेबसाइट पे जोड़ा जाएगा, है ना। तो आप वो भी है, और आप जुड़िए और स्वागत है आपका। बस इतना ही मेरे ख्याल से। शार्दुला कुछ जोड़ना चाहो तो? बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जब आप मास्टर करना चाहते हैं तो आपको जो एसओपी लिखना पड़ता है और आपको अपनी प्रोफाइल लिखनी पड़ती है, उसमें बहुत जरूरी ये होता है कि आपने पढ़ाई से हटके क्या किया। और वहां पर आर्ट्स का इतना ज्यादा है कि अगर आप टेक्निकल हैं तो आपने आर्ट्स में क्या किया, आप आर्ट्स में हैं तो आपने टेक्निकलिटी में क्या किया या मैनेजमेंट में क्या किया। तो ये जो क्रॉस डिसिप्लिन का जो इंटरेक्शन है, उसके अलग से आपको अलग से वो एक तरह से इवैल्यूएशन होता है। तो अभी से आप चाहे सेकेंड ईयर में हो चाहे 4th ईयर में हो, अभी से आप वो जो अपना एक जुटाना चालू करें, आप बोलें कि मैंने काम किया है। उसके लिए अनूपदा ने आपको एक बहुत आसान एक तरीका बताया, थोड़ा सा काम है और उसमें आपको वो सर्टिफाई कर सकते हैं। और वैसे भी आप अगर पब्लिश हैं या आपने ऐसा लिखा कि मैंने अमेरिका की या सिंगापुर की इंटरनेशनल पोइट्री में पार्टिसिपेट किया है, वो सब आपको उस जो आप एसओपी लिखेंगे, अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखेंगे, उसमें आपके बहुत काम आएगा। क्योंकि मेरे नीचे बहुत बच्चे मेंटर करते हैं और बहुत सारे बच्चे सब ये जो आईवी लीग है उसमें जाकर वो लोग मास्टर्स करते हैं, तो मुझे पता है कि क्या इम्पोर्टेंट है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने तो मुझे, जिसको बोल ओवर करते हैं, ऐसे छक्के चौके लगाए पोइट्री के कि बिल्कुल मैदान आप लोगों ने जीत लिया। आज मैं बहुत खुश हो गई। मनीष जी, आपने बहुत हमें खुश कर दिया आज। बहुत शुक्रिया मनीष जी, आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अब मेरे को और शार्दुला को दोनों को ठीक 4 मिनट में एक दूसरी मीटिंग शुरू होने वाली है, उसमें जाना है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष, अनुराधा जी, तरंग, प्रशांत, रहीना, नमस्ते और ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू। नमस्ते। धन्यवाद। Thank you so much, sir. It was a great opportunity to have a session with you.
and ma'am. So now I would like to invite Prashant sir for a vote of thanks. थैंक यू रहीना। माननीय मनीष भार्गव सर, जो हमारे मार्गदर्शक और ऐसा कहें कि ये हिंदी सप्ताह के संस्थापक हैं और NIT अगरतला में हिंदी अधिकारी भी हैं। माननीय अतिथिगण शार्दुला मैडम और अनूप सर, माननीय अनुराधा मैडम और मेरे प्रिय छात्रगण, हम यहाँ आज हिंदी सप्ताह के अवसर को उत्सव के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए ऑनलाइन मोड में इकट्ठे हुए हैं। मैं सर्वप्रथम मनीष सर को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस आयोजन की नींव डाली सर्वप्रथम, और सदैव अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर इसे सदैव सींचते रहे और आगे बढ़ाते रहे, जो फलीभूत होके आज हमारे तक यहाँ तक इस फॉर्म में पहुंचा है। और मैं सर को जितना धन्यवाद दूं वो बहुत कम है, और हमारे पास मुझे लगता है कि ऐसा कोई उपयुक्त शब्द भी नहीं है जो हम इनके जो शब्द इनके एफर्ट्स को जस्टिफाई कर सके। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे अतिथि श्री अनूप भार्गव जी का, जिन्होंने अपने देश अपनी भाषा के लिए जो अहर्निशम सेवा महे वाली जो फीलिंग है और वो जो थिंकिंग है उसको फलीभूत करते हुए या फिर उसको चरितार्थ करते हुए, सर यूएस में आई थिंक अभी सुबह के 7 बज रहे होंगे या 6-7 के आसपास बज रहे होंगे। सर आपने अभी हमें सर इस बिजी शेड्यूल में आप हमें मिले, क्योंकि सर बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है जितने लोग हैं उसमें से 10% लोग भी सुबह 7 बजे नहीं उठते होंगे। आप सर उठ के इतना अच्छा इंटरेक्शन सेशन आपने किया, सर धन्यवाद सर। सर आपने जो कला और संस्कृति, कला और आर्ट का जो समावेश जो प्रस्तुत किया सर हमारे समकक्ष अपनी कविताओं के द्वारा, सर वो बहुत बहुत अतुलनीय थी सर। सर आपने एक और शब्द कहा था कि आपने तैयारी नहीं की है। सर बिना तैयारी के अगर आप ऐसी चीजें कर सकते हैं और ऐसी कविताएं सर आप हमारे समक्ष ला सकते हैं, तो सर हम आपको दोबारा और तैयारी के साथ हम आपको सुनना चाहेंगे सर। और सर आपने कुछ मनीष सर ने भी कुछ आपको सजेशंस दिए। आपने इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एवरीथिंग, जितने भी जो चीजों से लोग डरते हैं, आपने सब चीजों की जो सर खिचड़ी नहीं कहूंगा, खिचड़ी थोड़ी सी वैसी शब्द होते, जैसे सर जो बिरयानी पेश की हमारे सामने सर, वो काफी दिलकश थी सर। सर धन्यवाद सर। और उसके बाद फिर मैं माननीय शार्दुला मैम को अपनी कविताओं उसके साथ और कुछ कहना चाहता हूं कि मैडम ने जो एक क्रिएटिव पोएम राइटिंग को जो प्रैक्टिस कराई हमारे सामने, वो काफी न्यू थी और हमारे जनरेशन, हमारे बच्चों के लिए आई थिंक बहुत कारगर साबित होगी। और मैं भी सीरियस इंजीनियर हूं, लेकिन जो क्लाउड कंप्यूटिंग को आपने जिस दिशा में आप ले गई अपनी कविताओं के द्वारा, शायद ही कोई सीरियस इंजीनियर वहां तक पहुंच पाए या वहां पे सोच पाए। सो धन्यवाद मैम। और मैम स्टार्ट में आपने एक रामधारी सिंह दिनकर की जो कविता पढ़ी थी, सो मैं करता हूं कि हमारे छात्रगण उससे कुछ प्रेरणा लेंगे और जो लोग हतोत्साहित रहते हैं उनको वो कविता प्रेरित करेगी। मैडम आपका जो बायोग्राफ आया था, जब मनीष सर ने भेजा था हमारे पास, तो मधुबनी जिला लिखा हुआ था, तो मधुबनी सुन के ही हमारे पास कुछ ऐसा लगा था कि जब मधुबनी की मिट्टी और मधुबनी की संस्कृति कुछ ऐसी है, तो आपकी हमें ऐसा हुआ कि मधुबनी की मिट्टी में आज भी वही बीज है और वैसी चीजें, वैसी कला अभी प्रस्फुटित हो रही है। धन्यवाद मैडम। और नेक्स्ट मैं अनुराधा मैम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं क्या धन्यवाद दूंगा, यहाँ पे जितने भी छात्रगण हैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे अनुराधा मैम का, क्योंकि आज जो लिटरेरी क्लब ऊंचाइयों पे है और जितने भी कला, जो भी कला हमारी NIT अगरतला जिस भी ऊंचाइयों पे है, उसका पूरा श्रेय हमारी अनुराधा मैम को जाता है, जिन्होंने अपने सर्वस्व देकर, चाहे वो ड्रामा हो चाहे पोएट्री हो, सो निरंतर प्रयास करते हुए
और सांस्कृतिक आयोजन में जो भी आयोजन हुए उन्होंने मैंने अपने बच्चों का खूब प्रोत्साहन किया, जिसके रिजल्ट आज हमें देखने को मिला है कि हमारे बच्चे आज IITs में भी जाके अच्छे अच्छे प्राइजेस जीत रहे हैं, फर्स्ट सेकंड प्राइजेस भी जीतते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं अपने बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और ये हमारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे बहुत प्रिय हैं, लेकिन एक वक्त जब शार्दुला मैम ने बोला था कि मैं रैंडम लोगों को बुला के और उससे पोएट्री सुनूंगा, तो मुझे थोड़ा डर लगा था, क्योंकि जब हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और ऐसे ही बोलते हैं कि हम रैंडम लोगों से पूछेंगे तो लोग गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरे को लगा कि ये 44 की जो काउंटिंग है वो शायद पता नहीं कहाँ जाएगी, लेकिन हमारे बच्चों ने बहुत लाइव इंटरेक्शन किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक और जो लाइन कही जाती है कि इंजीनियर्स कैन डू एवरीथिंग अदर देन इंजीनियरिंग, तो मैडम और सर के द्वारा शायद वो एवरीथिंग शायद कुछ अच्छी दिशा में चली जाए। वो हम ऐसी आशा करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो कुछ अच्छी दिशा में जाए। खैर इंजीनियरिंग तो सब लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा अपने विशिष्ट अतिथिगण का, शार्दुला मैम का और अनूप सर का। तो वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं ये चाहूंगा कि ये मनीष सर के द्वारा जो ये स्टार्टेड ये जो इंटरेक्शन सेशन है, और अनूप सर और शार्दुला मैम ने जो ये एफर्ट्स स्टार्ट किए हैं, और ये जो पाठशाला की जो हम बात कर रहे हैं, इसके द्वारा हमारे स्टूडेंट्स जो आज जो देश में ख्याति बना रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कुछ ख्याति बनाएंगे, और उसके लिए हम बहुत गर्वान्वित महसूस करें। मैं हमेशा चाहता हूं कि हमारे बच्चे जैसे भी हैं, भले ही यहाँ जब होते थे तो हम जो भी कहते थे, अब वहाँ जो भी है हम अच्छा ही कहते हैं, हम सबके लिए अच्छा ही कहते हैं। भले ही हम वो कहते थे ना कि जब वो हॉस्टल में रहा करते थे तो वो ऐसा कुछ कहते थे कि हम तो अपने बाप की भी नहीं सुनते, और वो भले ही आज वो फोन करके बोलते हैं सर बुला लो। तो जो भी है, जोक्स अपार्ट, वो हमारे बच्चे हैं, हमारे प्यारे बच्चे हैं, और हम हमेशा उनको ऊंचाइयों पे देखना चाहते हैं और हम ऐसी कामना करते हैं। धन्यवाद। मैं इस आयोजन में मुझे धन्यवाद ज्ञापन करने का जो अवसर प्रदान किया, इसलिए मैं अपनी पूरी प्रबंधन समिति को और बच्चों को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, और इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ।